السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میرا نام عمر تاج ہے۔ ناظرین، آج ہم ٹی ایل پی کے بہت مشہور اور سرگرم کارکن اور رہنما سردار ذوالفقار احمد عرف زلفی ڈوگر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں انتخابی سرگرمیوں کا حال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں جی؟ جی بہت شکریہ عمر بھائی۔ اچھا زلفی صاحب، ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے سیاستدانوں سے کہ ہم سب سے پہلے تفظ ختم نبوت کے بارے میں ایک اوتھ لیتے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ لے لیں۔ جی یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے۔ ہماری تنظیم کا تو بنیادی مقصد ہی عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے، اور پارلیمنٹ میں جو بھی ممبر جائے اس کا اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ ماشاءاللہ، بہترین۔ اچھا سر، ہم انٹرویو کے آغاز میں سب سے پہلے آپ ہمیں اور ناظرین کو بتائیں آپ کی تعلیم اور پیشہ کیا ہے؟ عمر بھائی 89 میں میٹرک کیا، اس کے بعد بورے والا کالج میں آ گئے۔ کالج میں سیاست بھی کی ہوئی ہے، الحمدللہ ایسی سیاست کی ہے کہ آج 30-32 سال ہو گئے ہیں۔ جب جہاں بھی جاتا ہوں دوست یاد رکھتے ہیں۔ گریجویشن کی ہوئی ہے، اس دوران پھر میں 97 میں باہر چلا گیا، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، ٹھیک۔ آپ نے بتا دیا کہ سیاست میں آپ نے عملی سیاست کب سے شروع کی؟ کیا آپ ٹی ایل پی سے ہی شروع کی ہے یا اس سے پہلے بھی آپ کسی جماعت سے الیکشن لڑتے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی برادری میں تو ماشاءاللہ سارے سیاستدان ہی ہیں، تو آپ یہ بتائیں بھی آپ نے ٹی ایل پی سے آغاز کیا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ سیاست میں تھے؟ جی میں اس سے پہلے باقاعدہ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ کالج کے زمانے میں بالکل میرا تعلق رہا ہے جھنگ کی مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے، 3 سال میں اس میں رہا ہوں۔ لیکن بورے والا کی سیاست ہم نے میرے بڑے بھائیوں نے کی ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، میرے پھوپھی زاد بھائی ایم پی اے بنے شہر سے، حاجی خوشحال محمد ڈوگر مرحوم، ٹھیک ہے جی۔ سیاست سے تو ہمیں اس وقت سے لگاؤ ہے۔ پھر اس کے بعد تایا زاد بھائی ڈاکٹر نذیر احمد مٹھو ڈوگر مرحوم 2002 میں ایم پی اے بنے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جب الیکشن ہوتے تھے تو ہمارا ووٹ بینک فیملی کا مسلم لیگ نون کو جاتا رہا 2009 تک۔ 2009 کے بعد پھر ہمارے کوئی خاندانی مسئلے بنے، بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے، کچھ نون لیگ میں رہ گئے، لیکن میں کسی جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ تحریک لبیک کو میں اس وقت سے پسند کرتا تھا جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، سنتا بھی تھا، محبت دلوں میں تھی۔ پھر یہ بورے والا کی تحریک لبیک کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ مجھے ذمہ داری دے دی۔ ٹھیک، اب ٹی ایل پی کے بارے میں بتائیں کہ ٹی ایل پی کا منشور ایک تو مرکزی قیادت سے آتا ہے، گاہے بگاہے وہ جلسوں میں اور میڈیا ٹاک میں سنتے ہیں۔ آپ اپنی زبانی اپنی جماعت کا منشور بتائیں، اور آپ اپنا بھی منشور بتائیں کہ اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ الیکشن کے بعد الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا منشور آپ کا ہوگا؟ عمر بھائی باقی جماعتوں کو عوام دیکھ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے سامنے ہے سارے معاملات۔ ناموس رسالت پر بات آئی، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم ایک پیج پر ہوتی ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ قوم پوری، خواہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، تو ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسی جماعت میدان میں آئے جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان میں آئے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جماعتوں نے پاکستان کی مسلمان قوم کو مایوس کیا ہوا تھا۔ تحریک لبیک امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے اور مقصد کے لیے بنائی، اور اس کا منشور ہی یہ ہے کہ اسلام، عوام اور پاکستان۔ اور ہمارا یہاں پر بورے والا کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے۔ میں 2012 میں پاکستان میں آیا، میرا ایک لمبا عرصہ یورپ گزرا، نوجوان نسل سے میرا ایک فاصلہ بھی ہے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب پبلک میں جاتا ہوں تو وہ فاصلہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی زیادہ فاصلہ ہے نوجوانوں سے۔ بورے والا میں نے پچھلے 10 سال سے دیکھا ہے۔ 10 سال کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو نہ علم ہو، آپ چھوٹے ہوں اس وقت، ڈاکٹر نذیر احمد مٹھو ڈوگر مرحوم، انہوں نے سیاست کو ایک نیا رنگ دیا تھا بورے والا میں۔ ریڑھی والا، رکشے والا، رات 2 بجے بھی اس کو کام پڑتا تھا، وہ مٹھو ڈوگر کے دروازے پر جاتا تھا، مٹھو ڈوگر اس کے ساتھ جاتا تھا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایم پی اے بنا دیا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں اس جیسا ہوں، ان کا ایک اپنا ستارہ تھا، ان کی سٹرگل تھی، جد و جہد تھی، لیکن ڈاکٹر نذیر احمد مٹھو ڈوگر کے بعد یہ بورے والا لاوارث ہوا۔ یہاں پر جو لوگ سلیکٹ ہوتے رہے
उनका आवाम से कोई तल्लक नहीं। हम अपनी आँखों से देखते हैं बूरे वाला की आवाम बेचारी छोटे छोटे मामलात में ख्वार होती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कोई सियासी डेरा इस वक्त बूरे वाला में नहीं है कि किसी को काम हो तो उसके पास जाए। टाउट माफिया हर इदारे में बैठी हुई है, टाउट माफिया के ज़रिए अवाम अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, और इस बात की गवाही आज तो मीडिया का दौर है, मेरे कॉलेज के ज़माने के मेरे मुखालफ कह देंगे। जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में था, मैं अक्सर कहता हूँ हम उस वक्त वो काम करवा लिया करते थे जो आज MNA MPA से होते ही नहीं हैं। हाँ जी, इस नीयत से आए हैं कि मखलूक के काम आएँ, अपने शहर का फ़ायदा करें। कभी कभार किसी दोस्त का कोई मसला हो जाए, हॉस्पिटल जाना होता है, रोना आ जाता है, मरीज़ पहुंचता नहीं है, पहले कह देते हैं ऐसे मुल्तान ले जाओ। हाँ जी, वो ठिंगी तक जाते हुए वो बेचारा फौत हो जाता है। शहर के जिस मसले को भी आप उठाएं, सीवरेज का मसला देख लें, हाँ जी, पूरे शहर में गटर उभर रहे हैं। लेकिन ये जमातें सारी हुकूमत में हैं, फ़ंड भी मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं कर रहा। इलेक्शन आएंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि जनाब वो बावडा वाले खंबे भी फेंक रहे हैं। एक महीना में बड़े काम होते हैं, लेकिन 4-5 साल बाद में ये अवाम लावारस हो जाती है। यही सोचकर मैदान में आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला अवाम की खिदमत करेंगे। बाकी और ना कोई लालच है, ना शौक़ है। छठी जमात में पढ़ता था, मेरा भाई बड़ा MPA था, मुझे वो भी क्रेज़ नहीं है कि जो लोगों को होता है कि MPA बनना है, ये है वो है। मैं रिटायर्ड DSP का बेटा हूँ, हर चीज़ देखी हुई है। लेकिन एक ही है कि एक जमात ऐसी है ये जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मैदान में आई है। इस जमात का नज़रिया अच्छा है और आवाम की खिदमत करने का दिल से जज्बा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है आपने। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपकी जो TLP, जैसे आप भी बता रहे हैं कि पहले आपकी फैमिली नून लीग को सपोर्ट करती थी, ऐसे आपके सपोर्टर भी ऐसे ही हैं। TLP से पहले कोई PTI का सपोर्टर था, कोई नून लीग का था, कोई पीपल पार्टी का था। तो ये मतलब मैं सबसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, अगर आप हारते हैं इलेक्शन, उसके बाद जो आपके सपोर्टर हैं उनका क्या होगा? पाकिस्तान में सिस्टम तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है, थाने कचहरी सिस्टम भी है। तो अगर आपके कुछ सपोर्टर हैं, वो आपके साथ हैं, वो सरकार सब नज़र आ जाता है, हर जगह पे मीडिया पे आ जाते हैं, तो हर बंदे को बताइए उस जमात का, उस जमात का। तो अगर कल को उनको कोई काम पड़ता है, तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? उनके लिए आपका क्या पैगाम है उन वोटर्स के लिए जो आपके साथ हैं अभी? उमर भाई, ये बूरे वाला है और अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। हम इलेक्शन में जिस पोजीशन में भी हों, जीत जाएं हार जाएं, हमारे वोटर और सपोर्टर की तरफ तो कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। बाकी बातें तो बात की हैं। हाँ जी, हमारे सियासी मुखालफिन को भी पता है, कोई ऐसा मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वोटर सपोर्टर के साथ खड़े होंगे। मैं अभी TLP ने तो मुझे कैंडिडेट नामज़द किया है, जब कैंडिडेट नहीं भी नामज़द किया था तो जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं वो हमारे पास आते रहे हैं और हम उनके काम भी करवाते रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ये बताएं कि कैंपेन पर आप जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो TLP के हवाले से लोगों का रद्दमल कैसा है, ख़ुसूसन आपको देखकर? मुझे इतनी ज़्यादा, हकीकत बात है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तवक्को नहीं थी जितना अच्छा रिस्पांस आवाम की तरफ से मिल रहा है। मैंने इतना सोचा नहीं था, मुझे ये था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये पोजीशन है कि हमसे लोग रब्ता कर रहे हैं कि जी आप TLP के कैंडिडेट हैं, आप हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं उनसे गाँव जब पूछता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये मेरे हलके में नहीं है, और तंजीम ने मुझे ये कहा कि आपने अपने हलके में वक्त देना है, और पूरे हलके से हमें आवाम की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। अच्छा, आला क़यादत से आपकी मुलाकात हुई है, बाबा जी खाज़म रिजवी साहब से और साद रिजवी साहब से? और दूसरा सवाल इसके साथ ही, क्या आपकी पार्टी में टिकट आपको कन्फर्म हो गया है, या ये जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो उसके बाद टिकट का आपको ऑफिशियली आएगा? टिकट इस वक्त बूरे वाला में अगर किसी का कन्फर्म है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक वालों का कन्फर्म है, बाकी तो किसी तंजीम का कन्फर्म नहीं। टिकट तो अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म है। और यहाँ पर हमारी खुशकिस्मती है कि बूरे वाला में शमशीर अमीरुल मुजाहिदीन और रुकन मजलिस शूरा अमीर जुनूबी पंजाब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब मुजद्दिदी सैफ़ी, उनका तल्लक भी बूरे वाला से है। तो हमारा उनसे रब्ता है आला क़यादत के साथ, तो इसका मतलब हम हर वक्त रब्ते में रहते हैं, हमें वो कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है, पिछले 2018 के इलेक्शन में अगर हम देखें तो आपकी बरादरी में से एक PTI की तरफ से MP के उम्मीदवार थे और एक नून लीग की तरफ से थे। अब 23 के इलेक्शन में 3 बंदे मैदान, इसमें सियासत के मैदान में उतरेंगे इलेक्शन के, तो बरादरी का वोट तकसीम हो जाता है या आपको सपोर्ट उतनी हासिल है? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें जी, तहरीक लब्बैक ज़रा हट के है दूसरी
इसका जो वोटर है, सपोर्टर है, वो नज़रियाती है। मैं खुद एक नज़रियाती आदमी हूँ और नज़रिए की बुनियाद पर ही तहरीक लब्बैक में आया हूँ। बाकी सारी जमातें एक तरफ, तहरीक लब्बैक में मुझे इतना पता है कि सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत भी है। और तहरीक लब्बैक के जो वोटर हैं, कारकुन हैं, मेरी असल बरादरी वो हैं। साफ बात है, मजहबी जमातों में यही होता है कि आपकी जो आपके करीब होते हैं वही आपका सब कुछ होते हैं। दूसरा, आपने बरादरी की बात की है तो देखें, उन चॉइस है, ये ओपन बात होती है, वो जिसको बेहतर समझेंगे उसको वोट देंगे। मैं तो हल्के में भी जाके कहता हूँ कि यार अगर आपको अच्छा लगता है कि दूसरा बंदा हमारा बेहतर अंदाज में काम करवाएगा तो आप उसको वोट दीजिए। हाँ जी, हमने अपना आप लोगों के सामने रखना है कि हम ये कर सकते हैं और हमने ये किया हुआ है, और हमें यकीन है कि इस बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला लोग हमारा साथ देंगे। अच्छा, दूसरी जमातों से आप, एक तो आपका बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म से आप है ना कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत, ये नो डाउट कि एक इबादत भी है। दूसरी जमातों से आप कैसे मुख्तलिफ हैं इलेक्शन के लिए? अगर आप किसी को कहना चाहते हैं, कल को आप अगर हुकूमत में आते हैं तो इस पॉइंट के अलावा इंतज़ामी अमूर जो बाकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी जमात के अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि आप पाकिस्तान में चाहे जितने मर्ज़ी मदारस बना लो, मसाजिद बना लो, मसाइल उस वक़्त हल होंगे जब दीन तख्त पर आएगा। मतलब जब एक इस्लामी नज़रिए, इस्लामी सोच वाले लोग पार्लियामेंट में पहुँचेंगे, असम्बलियों में जाएंगे, उस वक़्त पाकिस्तान के मामला दुरुस्त होंगे। कौम ने आज़मा लिया, देख लिया, ये दो बड़ी जमातें हैं, इनके लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं और आवाम का हशर आपके सामने है। इतनी महंगाई में किसी एक बंदे ने इस्तीफ़ा दिया है कि अपनी पार्टी से इख्तलाफ किया हो कि जनाब मेरे हल्के की आवाम तो मर गई, आटे लेने की ये लाइनों में लगी हुई है, मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ? किसी एक ने ऐसा किया? नहीं। तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह ताला अवाम के लिए निकलेगी और अवाम के लिए खड़ी होगी। अभी मौजूदा सूरत हाल में महंगाई हुई है, पूरे पाकिस्तान में सारी कौम खामोश। सिर्फ TLP के अमीर हाफ़िज़ साद रिजवी साहब ने ऐलान किया, पहले शटर डाउन 27 तारीख बरोज़ सोमवार को, और उसके बाद ये अभी जुमे वाले दिन 3 बजे पूरे पाकिस्तान में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़। तो इस वक्त अवाम के लिए जो तंजीम मैदान में है वो TLP है और अवाम ये देख भी रहे हैं। हाँ जी, आखिर पे बूरेवाला की आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें इलेक्शन के हवाले से, या इसके अलावा कोई पैगाम देना चाहें? बूरेवाला के दोस्तों से ये गुजारिश है कि 10 साल से बूरेवाला लावारिस बना हुआ है। इतनी लाकानूनियत मैंने कहीं नहीं देखी। जी, कोई पूछने वाला नहीं होता रहा। अभी चंद दिन पहले नए DPO साहब से वाकई उम्मीदें हैं, उन्होंने कुछ आकर काम भी ऐसे किए हैं कि हमें उम्मीद की किरण नज़र आई है कि शायद हमारा शहर बच जाए। वरना यहाँ पर तो आप रात को ना अपने गांव जा सकते थे, अगर गांव में रहते हैं आप शहर नहीं आ सकते, या आपका मोबाइल जाएगा या मोटरसाइकिल जाएगा। बूरेवाला में पिछले 1 साल से ये हाल हो रहा है। कोई एक इदारा नहीं है जो रिश्वत और करप्शन के बगैर किसी का काम कर रहा हो। हमारे जैसे बंदे, कोई यार दोस्ती जिनकी होती है माशरे में, वो तो काम करवा लेते हैं। आम आदमी का क्या बनता है? आम आदमी बहुत बुरे हालात से गुजरा, अवाम के सामने है। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार की हैसियत से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर अल्लाह पाक ने, वो अल्लाह की तौफीक से ही बंदा करता है। अल्लाह की तौफीक से जब ज़माना तालिब इल्मी में थे उस वक़्त भी लोगों के काम करवाया करते थे। जब सियासत में आने का भी नहीं था, ना मुझे TLP के टिकट का था, हमारे पास कोई बंदा आ जाता था, हम तो ये भी नहीं देखते थे यार ये किस हलके का है, किस शहर का है, हम उठ के उसके साथ चले जाते थे उसका काम करवाने के लिए। अगर अवाम हमें वोट देगी तो ये नहीं हो सकता कि अवाम को फिर मायूसी हो। हमारे साथ मौजूद थे जी PP 231 के TLP के उम्मीदवार सरदार जुल्फ़कार अहमद जुल्फ़ी डोगर। हम इनके बड़े मशकूर हैं, उन्होंने अपना टाइम हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।